Hey, so today we will have our first lecture on cardiovascular physiology. TK, and this lecture will specifically discuss some introduction to the important terminology used in the whole chapter and a sort of introduction to the basic functions of the cardiovascular system. ठीक है, so इस system में हम जो कुछ पढ़ेंगे वो आगे आगे जाते हुए अनवील होता रहेगा. So let's break this tough chapter into various small portions to make it easy and digestible. So we know that the whole cardiovascular system will be summarized into two portions, the cardio portion or the heart portion जो कि अभी हम पढ़ेंगे and the vascular or the blood vessel portion. तो heart physiology and vascular physiology. The first thing is the structure of the heart. ठीक है, so we know that the heart is having three layers, the pericardium, the myocardium and the endocardium. ठीक है, the outer layer is pericardium as we all know, middle is myocardium and inside is endocardium. So outer peri, middle is myo and inside is endo. Pericardium is a little tricky, so let's read it first. So it is the outermost covering of the heart and it further has two layers. तो हम इसको ऐसे बनाएंगे कि ये हमारे साथ इसका एक लेयर हो गया और ये दूसरा लेयर थोड़ा मैं ऐसे बनाऊंगा बिकॉज इट फर्दर ए लिटिल ट्रिकी. सो एक इसका हो गया आउटर पेराइटल लेयर और इनर विस्रल लेयर. द विस्रल लेयर इज लाइंग ऑन द विसरा एंड बिटवीन देम देयर इज a space that is called this space pericardial space that is filled with the fluid called pericardial fluid. ठीक है, और वो pericardial fluid जो होगा वो इस वाले जो पेराइटल लेयर है इससे सिक्रीट होगा. सो याद रखें कि outer parietal layer is further divided into two, the fibrous layer that is formed by thick fibrous tissue and the serous layer formed by mesothelium. तो जो मैंने बनाया ऐसे ऐसे करके this is the serous layer और outer जो indigo कलर का है that is the fibrous layer और inner layer this is mesothelium, the squamous cells of serous layer and it actually these cells that secretes the fluid. तो यहाँ पे जो fluid होगा वो इन serous cells जो mesothelium में इसका इससे secrete होगा. So remember the important point के pericardium is the outer parietal and the lateral outer parietal further into two, the fibrous layer and the serous layer, and the serous layer secrete fluid that is pericardial fluid. ठीक है, and occupying this space. Now let's come to myocardium. It is the middle layer we formed by cardiomyocyte and cardiac muscle fiber. इसके तीन types of fibers होते हैं. नंबर फर्स्ट वो मसल फाइबर जो कंट्रेक्टाइल यूनिट बनाते हैं, आगे जाके हम इंशाल्लाह कंट्रेक्टाइल यूनिट थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. दूसरा वो फाइबर्स जो एज ए पेसमेकर काम करते हैं और तीसरे वो जो कंडक्शन सिस्टम में यूज होते हैं. ठीक है, सो मसल फाइबर्स फॉर्मिंग कंट्रेक्टाइल यूनिट, फॉर्मिंग पेसमेकर्स एंड फॉर्मिंग conductive system of the heart. Inner जो है it is the innermost and formed by the single layer of the endothelium and it is the layer that is very important for the endocarditis. ठीक है, and it lines the inner surface and the endocardium continue as endothelium of the blood vessel. For example, this is heart and this is the blood vessel going out. तो जो इसका inner endocardium है it becomes continuous with the blood vessels. Now actions of the heart. तो actions of the heart mainly four हैं. एक है इसका chronotropic action, second one is inotropic, the third one is dromo and fourth one is बेथमोट्रॉपिक. अच्छा, chronotropic क्या है? और chronotropic को आप सिंपली याद रखें कि it is the heart rate. हार्ट रेट ज्यादा हो तो ये टेकिकार्डिया और कम हो तो रेडिकार्डिया. आइनोट्रॉपिक जो है याद रखें कि इट इज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन. तो वंस अगेन इसके टू टाइप्स होंगे, या पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक्स होगा जिसमें फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज्यादा होगा, या नेगेटिव आइनोट्रॉपिक होगा जिसमें फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगा. द थर्ड वन इज ड्रोमोट्रॉपिक. ड्रोमिक ट्रॉपिक एक्चुअली कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस. तो वंस अगेन इसके टू फॉर्म्स होंगे, या तो पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट होगा जिसमें कंडक्शन वेलोसिटी ज्यादा होगी, या नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट होगा जिसमें कंडक्शन वेलोसिटी कम होगी. एंड द अदर वन इज बेथमोट्रॉपिक, दैट इज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल fibers. ठीक है, in the same way it may be either positive bathmotropic and negative bathmotropic. So hope so far these terminologies are clear. Now let's move ahead. Autonomic control of heart. So we already know that heart has a dual supply that is having sympathetic and parasympathetic. तो sympathetic का receptor इन पे बीटा होता है जो कि हम already डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, और डिटेल में हम नहीं जाएंगे.
और इनका न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है, मेनली नॉरएपिनेफ्रिन, दो के एपिनेफ्रिन आल्सो हैज इफेक्ट ऑन हार्ट। और इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? इंक्रीज द हार्ट रेट, इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी, और इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी स्पेसिफिकली इन द एवी नोड। सिमिलरली पैरासिम्पथेटिक का रिसेप्टर मस्करीनिक है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर इसका एसिटाइलकोलिन है। हार्ट रेट को ये डिक्रीज करेगा, हमें पहले पता है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डिक्रीज करता है। कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज करेगा स्पेसिफिकली इन द एवी नोड। एवी नोड में बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आएंगे, और इंशाल्लाह हम जाकर हम इस चीज को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन क्या करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज कंट्रेक्टिलिटी। तो एट्रिया में मेनली ये कंट्रैक्शन डिक्रीज करता है। सो पैरासिम्पथेटिक और एट्रिया, ये पॉइंट अभी से जहन में रख के इंशाल्लाह आगे जाके हम एक बार फिर भी इसे पढ़ेंगे कि कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज करता है स्पेसिफिकली इन द एट्रिया। सो याद रखें कि डिक्रीज जब कंडक्शन वेलोसिटी थ्रू एवी नोड होती है, इट इंक्रीजेस द पीआर इंटरवल एंड वाइस वर्सा। इंशाल्लाह जाके आगे जाके ये खुद एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन पॉइंट जहन में रखा करें। आयोनिक मैकेनिज्म ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, के किस तरह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वेरियस फेजेस ऑफ द हार्ट कंट्रैक्शन, ब्रोमोट्रॉपिक बेथमोट्रॉपिक सारे इफेक्ट को इफेक्ट करता है। तो ये डिपोलराइजेशन के फेजेस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। बस इसलिए सिर्फ आप ये याद रखो कि पैरासिम्पथेटिक हो या सिंपथेटिक हो, मेनली इसका काम होता है फेज 4 ऑफ डिपोलराइजेशन, ठीक है, फेज 4 ऑफ डिपोलराइजेशन। यहाँ पे भी सिंपैथेटिक में भी इट इंक्रीज द हार्ट रेट वाया फेज 4 डिपोलराइजेशन, ठीक है, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। और आयन मेनली यहाँ पे क्या होगा? सोडियम करंट, जो कि इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे। एंड सिमिलरली फेज 4 डिपोलराइजेशन इन द एसए नोड, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? डिक्रीज करता है, और सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है। और मेनली इफेक्ट कहाँ पे करता है? फेज 4 डिपोलराइजेशन। नाउ डिक्रीज इन द कंडक्शन वेलोसिटी करता है थ्रू एवी नोड, ठीक है, और ये करता है थ्रू नंबर 1 डिक्रीज इन द इनवर्ड करंट ऑफ द कैल्शियम एंड इंक्रीज इन द आउटवर्ड करंट ऑफ द पोटाशियम, ठीक है। और जो सिंपैथेटिक है, ये मेनली थ्रू सोडियम कैल्शियम ही करेगा, ठीक है, इसमें पोटाशियम का इफेक्ट इतना नहीं है। सो इंक्रीज इन द कंडक्शन वेलोसिटी बाय इंक्रीजिंग द इनवर्ड करंट ऑफ द कैल्शियम, और यहाँ पे डिक्रीज करता है थ्रू डिक्रीजिंग इनवर्ड कैल्शियम एंड इंक्रीजिंग आउटवर्ड पोटाशियम। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक पहले भी बताया था कि एट्रिया, एसए नोड, एवी नोड ऑल हैव वेगल स्टिमुलेशन, बट वेंट्रिकल्स डू नॉट हैव एनी वेगल स्टिमुलेशन। सो कंडक्शन वेलोसिटी याद रखें कि फास्टेस्ट इन परकिंजी में होती है और स्लोवेस्ट इन द एवी नोड। तो कंडक्शन वेलोसिटी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ये वाले कि फास्टेस्ट कहाँ पे है। सो रिमेंबर, Mr. Purkinje is having the fastest system, Mr. AV is having the slowest system. Now we will study some important membrane channel in my side। तो इसमें हमारे साथ अनगेटेड चैनल्स हैं और वोल्टेज गेटेड चैनल हैं। नाम से इनका पता चलता है, जो अनगेटेड चैनल्स हैं इसका कोई गेट नहीं होगा और ये ऑल द टाइम ओपन रहेंगे। और जो वोल्टेज गेटेड चैनल हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ इन रिस्पॉन्स टू वोल्टेज या चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये ओपन होते रहेंगे। तो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ अनगेटेड चैनल। तो ये हमारे साथ मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये इसमें एक चैनल है जो कि इस पे कोई गेट नहीं है। लाइक यहाँ पे ना कोई गेट है या यहाँ पे कोई गेट है। ये है आउटसाइड एनवायरनमेंट और ये है इनसाइड। तो पोटेशियम कंटिन्यूसली आउटसाइड लीक करता रहता है इसमें, और इनको कहते हैं अनगेटेड चैनल, ठीक है। अच्छा, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, तो उसमें क्या होता है कि लेट सपोज दिस इज ए मेम्ब्रेन, और ये हमारे साथ एक चैनल है जिस पे यहाँ पे एक गेट है जो इस चैनल को बंद किया होता है, और यहाँ पे सोडियम आयन है जो इस चैनल की वजह से अंदर नहीं आ सकता। तो अगर ये डीपोलराइज हो जाए, यहाँ पे इम्पल्स आ जाए, तो डीपोलराइजेशन स्टेट कैसे हो जाएगा? ये चैनल जो है इसका ये गेट इसे सीधा हो जाएगा, और देयर विल बी a lot more influx of sodium ion inside, ठीक है। सो वोल्टेज गेटेड का मतलब यह है कि वो ये इन रिस्पॉन्स टू डीपोलराइजेशन ओपन होगा और अलॉट मोर सोडियम फिर अंदर आएगा, और ये फास्ट ओपन होता है इसलिए इसको फास्ट सोडियम चैनल कहते हैं। और जो स्लो चैनल्स हैं हमारे साथ वोल्टेज गेटेड, वो टू टाइप्स के हैं, एक है स्लो पोटाशियम और है स्लो कैल्शियम। तो स्लो कैल्शियम की का भी यही है, लेट्स सपोज मेम्ब्रेन है, ये चैनल है और ये इस पे गेट है। तो डीपोलराइजेशन आता है तो ये गेट ऐसे स्टेट में चला जाता है, ये गेट इससे यहाँ पे आ जाता है और सोडियम इनसाइड द सेल चला जाता है। पोटाशियम जो है इसका अपोजिट इसलिए है, लेट्स सपोज ये पोटाशियम है
तो यहाँ पे इसका गेट है, तो इंस्टीड ऑफ डिपोलराइजेशन, अगर ये मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन या रेस्टिंग स्टेट में हो तो ये गेट इस कंडीशन में आ जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, और पोटेशियम बाहर लीक कर पाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट वोल्टेज गेटेड एंड अनगेटेड चैनल्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक यहाँ पे तो मेंशन नहीं करना चाहिए, दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद, वो है लैग एंड गेटेड। लैग एंड गेटेड का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये एक चैनल है, तो इसके साथ ये गेट है इसका, और ये इसके साथ एक रिसेप्टर होता है। तो एक मॉलिक्यूल लेट्स सपोज न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बाइंड हो जाता है, तो वो इसको इस कॉन्फ़िगरेशन में लेके आता है, इसका ये गेट ओपन कर देता है, ठीक है। सो दैट ओपन इन रिस्पॉन्स टू द ligand, इसलिए इसको हम ligand gated channels कहते हैं। सो होप बाय नाउ इट इज क्लियर टू यू दैट देयर इज अनगेटेड चैनल, देयर इज वोल्टेज गेटेड चैनल, जो कि या फास्ट होंगे लाइक सोडियम, और या स्लो होंगे लाइक पोटाशियम एंड कैल्शियम, या लाइक तीसरी टाइप जो है वो मैं यहाँ पे बना दूंगा, वो है ligand gated। ligand gated का मतलब ये है कि इसके साथ एक ligand अटैच करेगा जो मोस्ट ऑफ टाइम न्यूरो ट्रांसमीटर, फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन, वो यहाँ पे बाइंड करेगा और गेट को ओपन करेगा। नाउ थोड़ी सी मैं वो डिटेल लिखी हुई कि अनगेटेड चैनल, these channels are always open and potassium efflux means going outside. अच्छा, voltage gated channel, these channels open and close quickly करना, and that is why sometimes referred as fast channel, और these are closed under resting, हमें पता है, और depolarization open them। voltage gated कैल्शियम चैनल तो ऑलमोस्ट इसी की तरह है लेकिन स्लो है, तो अंडर रेस्टिंग कंडीशन क्लोज होते हैं, depolarization open them, they open more slowly than sodium channel, ठीक है, and consequently they are called slow channel। voltage gated potassium channel तो वो different in a sense that they open under resting or repolarization and depolarization closes them। so nutshell हमारे साथ क्या आ गया इसका, the potassium conductance is exceptionally high during resting state। exceptionally high क्यों है, let's suppose ये membrane है, ठीक है, तो हमारे साथ ये एक पोटेशियम चैनल होगा, ये दूसरा, ये अनगेटेड है तो इससे तो पोटेशियम निकल ही रहा है, और ये गेटेड है तो हमें पता है कि रेस्टिंग स्टेट में इसका गेट ओपन होगा तो इससे भी पोटेशियम बाहर लीक करेगा। दैट इज व्हाई पोटेशियम कंडक्शन इज एक्सेप्शनली हाई ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट, बिकॉज ओपन अनगेटेड एंड ओपन वोल्टेज गेटेड चैनल ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट, व्हाइल पोटेशियम कंडक्शन इज मिनिमल ड्यूरिंग प्लेट्यूज। तो आगे जाके इंशाल्लाह हम प्लेट्यूज डिस्कस करेंगे। होप बाय नाउ दीज थिंग्स जो हमने पढ़े हैं ये क्लियर हैं, और आगे जाके हम थोड़े और भी टफ चीजें पढ़ेंगे, दैट विल बी द एक्शन पोटेंशियल्स इन द नोड्स इन द मायोकार्डियम, ठीक है, और उसके साथ में हर्ट साइकिल। सो इट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।